جمیل اپنی بیوی جمیلہ اور پیاری سی بیٹی نوری کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب تھا۔ ان کی زندگی سادگی سے بھرپور تھی، مگر غربت اتنی زیادہ تھی کہ اکثر 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی۔ جمیل روزی روٹی کے لیے ندی کنارے جا کر مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا۔ سارا دن کی محنت کے بعد جمیل کے ہاتھ صرف ایک مچھلی آئی۔ جمیل نے شکر کا سانس لیا، جال سمیٹا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے، کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، الحمدللہ۔ پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کچے سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ارے جمیل، آ گئے تم؟ کتنی مچھلیاں پکڑیں آج؟ جمیلہ، سارا دن جال ڈالا، محنت کی، بس ایک مچھلی ہاتھ آئی ہے۔ بس صرف ایک مچھلی؟ اس سے ہم تینوں کی بھوک کیسے مٹے گی جمیل؟ جمیلہ، نہ شکری اللہ کو پسند نہیں، اسی کو بسم اللہ کر کے پکاؤ، انشاءاللہ اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ٹھیک کہا جمیل، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہی نوالا ہمارے لیے باعث خیر ہو۔ پھر کیا تھا، جمیلہ نے محبت اور شکر کے ساتھ چھوٹی سی مچھلی کا مزیدار سالن تیار کرنا شروع کر دیا۔ ہنڈیا سے خوشبو نکل کر پورے محلے میں پھیل گئی۔ ارے واہ امی جان، خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے۔ آج کھانے میں کیا پک رہا ہے؟ جی میری بچی، تمہارے ابو مچھلی لائے ہیں، وہی پکا رہی ہوں۔ بہت خوب، آج تو ہم مزیدار مچھلی کھائیں گے۔ جی میری بچی ضرور، آج ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ مزیدار مچھلی کے سالن کی خوشبو گاؤں کی بدتمیز اور آوارہ بلیوں تک بھی پہنچ گئی۔ لاجواب، مزیدار، کیوں بھائی کلو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بھوری میری بہن، نوری کا باپ جمیل مچھلی لے کر آیا ہے، آج وہی پک رہی ہے نوری کے گھر، یہ مزیدار خوشبو بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ کیوں بھائی سفیدے، پھر کیا پروگرام ہے آج کا؟ پروگرام کیا ہونا ہے میری پیاری بہنوں، بس نوری کے گھر جانا ہے اور مزیدار کھانا جی بھر کر کھانا ہے۔ یہ سب شکر اور صبر کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ تبھی گاؤں کی تینوں آوارہ بلیاں آن دھمکی۔ بھوری نے جمیلہ پر چھلانگ لگا دی اور اس کے بالوں میں لٹک گئی۔ دوسری طرف سے سفیدہ جمیل پر کودا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ موقع پا کر کلو نے پلیٹ سے مچھلی اٹھائی اور بھاگ گئی۔ یا اللہ، ان کمبخت بلیوں سے کب ہماری جان چھوٹے گی؟ انہوں نے تو پورے گاؤں کے لوگوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، جی چاہتا ہے انہیں جان سے مار دوں۔ جمیلہ، کوئی بات نہیں، تم دل برا نہ کرو، یہ مچھلی شاید انہی بلیوں کے نصیب کی تھی، اسی لیے لے گئیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، ہمارے نصیب کا ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ابو جان، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، اب ہم کیا کھائیں گے؟ میری بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ابھی برابر والے متین صاحب کے گھر سے کچھ ادھار مانگ کر لاتا ہوں ہمارے کھانے کے لیے۔ متین صاحب گاؤں کے ایک عمر رسیدہ شخص تھے، مگر ان کی طبیعت میں نہ عمر کا لحاظ تھا نہ ہی اچھا ظرف۔ یہ نہایت کنجوس، تنگ دل اور خود غرض انسان تھے۔ ان کی بیوی شمشاد بیگم، جو چالاکی میں کسی سے کم نہ تھی، نیت کی بھی کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ دونوں میاں بیوی کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ ان کا تعلق کسی نیچ خاندان سے لگتا تھا۔ ارے اس وقت کون آ گیا کھانے کا مزہ کرکرا کرنے؟ ارے میری جان حیات، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں دیکھتا ہوں کون ہے دروازے پر۔ متین صاحب، میں جمیل، آپ کا محلے دار۔ یہ بھوکا ننگا کہاں سے آ گیا اس وقت؟ ضرور کچھ مانگ نہیں آیا ہوگا۔ ارے بیگم، یہ کیسے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ تو لحاظ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ متین صاحب، آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ۔ السلام علیکم متین صاحب۔ وعلیکم السلام جمیل میاں، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ بس متین صاحب، کیا بتاؤں، آج جیسے ہی ہم سب کھانے کے لیے بیٹھے تو گاؤں کی آوارہ بلیوں نے دھاوا بول دیا۔ نہ صرف مچھلی لے گئیں بلکہ ہماری ہانڈی بھی الٹ دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں۔ میری بیٹی نوری بھی بھوکی ہے۔ اگر آپ کچھ ادھار دے دیں، جیسے تھوڑے سے چاول اور دال، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں غریب آدمی ہوں، مگر وعدہ کرتا ہوں جلد ہی واپس لوٹا دوں گا۔ جمیل میاں، ہم نے یہاں کوئی لنگر نہیں کھولا ہوا جو بھکاری بن کر مانگنے چلے آئے۔ ساری زندگی نکمے پن میں گزار دی اور اب دوسروں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ متین صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ سے ادھار مانگا ہے، بھیک نہیں۔ میں بہت جلد آپ کو لوٹا دوں گا انشاءاللہ۔ چلو
अब कस्मत तुम्हें मेरे दरवाजे पर ले ही आई है तो क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा दूध रखा है, दे देता हूं, मगर सुन लो जमील, खबरदार अब दोबारा मेरे दरवाजे पर अपनी इल्तजा लेकर मत आना। मैं रोज रोज तुम जैसे मांगने वालों का पेट नहीं भर सकता। शमशाद बेगम, जरा सा दूध थैली में डालकर ले आओ। कल रात का बासी दूध लाना बेगम, ताजे की तो मैं चाय बनाकर पीऊंगा। आप बेफिक्र हो जाएं, बासी दूध में भी पानी मिला कर दूंगी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब निकल यहाँ से, खड़ा मुंह क्या देख रहा है। जी जाता हूं, जज़ाकल्लाह खैरन। जमील उदासी और शर्मिंदगी के साथ घर वापस आने लगा। हाथ में एक छोटी सी थैली लिए जिसमें थोड़ा सा दूध था, जो मतीन साहब ने बड़ी सख्ती और जल्लत के बाद दिया था। अब्बू जान, क्या लाए हैं? मेरी प्यारी बेटी, थोड़ा सा दूध लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे वाह अम्मी जान, आज तो हम भी ठंडा मीठा दूध पिएगे। जी मेरी बच्ची, जरूर। नूरी ने मजे से दूध पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन जब जमील काम पर जाने लगा तो जमीला उसे मुखातब करते हुए बोली, जमील, आज मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। नदी किनारे जाकर जाल डालेंगे और देर तक बैठे रहेंगे जब तक कोई बड़ी मछली हाथ नहीं आ जाती। ठीक है जमीला, जैसे तुम्हारी खुशी। किसी ने सच ही कहा है, एक से भले दो। चलो अब जल्दी करो, वैसे भी काफी देर हो गई है। नौरी बेटी, हम दोनों काम के लिए जा रहे हैं। तुम घर का ख्याल रखना और रात वाला बचा हुआ दूध गर्म करके पी लेना। हम जल्द वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। जी अम्मी जान, आप बेफिक्र होकर काम पर जाएं। मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी और दूध भी गर्म करके पी लूंगी। शाबाश मेरी बच्ची। दोनों मियाँ बीवी नदी के किनारे जाकर बैठ गए और जाल डालकर दोनों उम्मीद भरी नजरों से बहते पानी को देखने लगे। काफी देर तक धूप, थकन और भूख के बावजूद ये दोनों बैठे रहे। न कोई शकवा न शिकायत, बस दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह, हमारे नसीब का रिज्क हमें अता फरमा। आखिरकार मेहनत रंग लाई। जाल में एक बड़ी खूबसूरत सब्ज सुनहरी मछली फांसी हुई थी, जो पानी में झलमलाती रोशनी की तरह चमक रही थी। ये दोनों मछली देखकर हैरान रह गए और जमीला खुशी से बोली, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत मछली है। आज से पहले मैंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी। ठीक कहा जमीला, ये तो वाकई बहुत नायाब मछली मालूम होती है। यकीनन जायके में भी बेमिसाल होगी। ये दोनों सब्ज सुनहरी मछली को पाकर बहुत खुश थे। उधर नूरी घर में अकेली बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन कौन है दरवाजे पर? नूरी, मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त, गली की बल्ली भूरी। मगर अम्मी तो घर पर नहीं है। अरे मेरी प्यारी दोस्त, दरवाजा तो खोलो। मेरे साथ सफीदा और कल्लू भी है। हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर अंदर आ जाओ। मैं भी कब से अकेली हूँ। हम अपनी रात वाली हरकत पर बहुत शर्मिंदा हैं और तुमसे माफी चाहते हैं। माफी के साथ साथ हम अपनी गलती का इजाला करना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे अब्बू का गला भी काफी जोर से दबाया था, मगर वो बच गए। बस वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चुखे। बेशक, मगर गलती का इजाला वो कैसे? वो ऐसे कि हम तीनों बहन भाई मिलकर तुम्हारे घर के सारे काम कर देंगे। मैं तुम्हारे पूरे घर की झाड़ू लगा दूंगा, और मैं तुम्हारे सारे कपड़े धो दूंगी, और मैं तुम्हारे बर्तन चमका दूंगी। स्कल्वो ने कपड़े धोने के बजाय सारे कपड़े फाड़ दिए। भौरी ने बर्तन साफ करने के बजाय बर्तन में रखा सारा दूध पी गई, और सफीदा ने झाड़ू उठाई और नौरी को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ये तीनों बलियां पूरे घर में तबाही मचाकर भाग गईं। नौरी बेचारी जार व कतार रोने लगी। इतने में जमील और जमीला सब्ज सुनहरी मछली लेकर घर वापस आ गए। मछली इतनी खूबसूरत थी कि नूरी मछली को देखकर अपनी सारी पिटाई भी भूल गई जो सफीदा ने लगाई थी। नूरी की आंखों में चमक आ माशाअल्लाह। गई और वो खुश होकर मछली को देखने लगी। जब जमील और जमीला ने मछली को पकाने की नीयत से काटना शुरू किया तो मछली के पेट से एक निहायत खूबसूरत और कीमती हीरा निकला। हीरे का रंग सब्ज था और उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। जमील और जमीला हैरत से इस नायाब हीरे को देखने लगे। उनके दिल खुशी से झूमने लगे।
अरे वाह जमील, ये तो कमाल हो गया। इतना खूबसूरत हीरा, वो भी मछली के पीठ से। सुभान अल्लाह। हाँ जमीला, ये तो बहुत कीमती मालूम होता है। हम इस हीरे को बेच देंगे, बदले में हमें बहुत से पैसे मिल जाएंगे। फिर हमारी जिंदगी भी आराम और सुकून से गुजरेगी इंशाअल्लाह, और तुम्हें लोगों के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा जमीला, मगर उस हीरे की सही कीमत तो हमें रानी जी ही दे सकती हैं। वो हमारे गांव और आसपास के तमाम गांव की मालिक हैं। तो फिर ठीक है जमील, हम ये हीरा लेकर रानी जी के पास चलते हैं। रानी सब्जा बेगम एक मगरूर और गुस्से की तेज़ औरत थी। उसे सब्ज रंग से बेहद मोहब्बत थी। हमेशा सब्ज रंग का लिबास पहनती, सब्ज रंग के ज़ीवरात से खुद को सजाती और सुनवारती। ये अपनी पालतू बल्ली सब्ज़ेन से बहुत मोहब्बत करती थी। जब जमील और जमीला सब्ज कीमती हीरा लेकर रानी सब्जा बेगम की खिदमत में हाजिर हुए तो रानी ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, क्यों आए हो तुम दोनों? तुम मुझे जानते तो होंगे, मैं फजूल लोगों और बातों पर अपना वक्त ज़ाय नहीं करती। रानी साहबा, हम आपके लिए एक नायाब सब्ज हीरे का तहफा लेकर हाजिर हुए हैं। ये हीरा हमें एक मछली के पेट से मिला है, निहायत कीमती है, और हम जानते हैं कि ये आपके मियार पर पूरा उतरता है। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत और सब्ज है। ये हीरा अब मेरी प्यारी बल्ली सब्जीन के गले का जीवर बनेगा। रानी सब्जा बेगम ने खुश होकर जमील और जमीला को बहुत सा इनाज, अमदा कपड़े और ज़रूरी सामान दिया। साथ ही हीरे की कीमत भी अदा कर दी। जमील और जमीला की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। अब उनका घर पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। नर्म बछौने, कीमती कपड़े और रोज़ाना मज़ेदार खाने खाना उनके लिए कोई मुश्किल बात न थी। इस वक्त कौन आ गया? कौन है दरवाजे पर? अरे जमील मियाँ, मैं हूँ मतीन, तुम्हारा मोहल्लेदार। अरे ये बदअखलाक, बदनीयत कंजूस आदमी यहाँ क्या करने आया है? खामोश हो जाओ जमीला, घर आए मेहमान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। आ जाइए मतीन साहब, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जमील मियाँ। वालेकुम अस्सलाम मतीन साहब, कैसे आना हुआ? बस मियाँ, सोचा कि तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। अरे भाई, तुम तो फकीर से अमीर हो गए। एक वक्त था कि तुम हमारे दरवाजे पर मांगने आते थे, और आज हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं तुम्हारे अच्छे दिनों की। ये राज हमें भी तो बताओ, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं मतीन साहब, बस मोहल्ले की आवारा बल्लियों को थैले में डाला और रानी सब्जा बेगम के पास ले गया। आप तो जानते हैं रानी बेगम को बल्लियां कितनी पसंद हैं। बस फिर बल्लियों के बदले रानी साहबा ने हमें बहुत से इनामात से नवाजा और खुश होकर बल्लियों की अच्छी खासी कीमत भी अदा कर दी, जिस पैसे से मैंने अपना खुद का मछलियों का कारोबार भी शुरू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, बहुत खूब। हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि रानी सब्जा बेगम के साथ एक बल्ली हमेशा रहती है। लगता है तुम सच कह रहे हो। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अरे मतीन साहब, चाय तो पी कर जाइए। नहीं जमील मियाँ, फिर कभी पिएगे चाय? फिर क्या था, मतीन साहब और उनकी बीवी शमशाद बेगम ने मोहल्ले की आवारा बल्लियों, भूरी, कल्लो और सफीदा को एक बड़े से काले थैले में डाला और सीधे रानी सब्जा बेगम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने मोहल्ले की आवारा बल्लियों, भूरी, कल्लो और सफीदा को बड़े फख्र से एक कीमती तोहफे के तौर पर पेश किया। मगर जैसे ही बल्लियों को थैले से निकाला गया, भूरी, कल्लो और सफीदा ने अचानक रानी सब्जा बेगम पर हमला कर दिया। रानी गुस्से से तेश में आ गईं। रानी ने फौरन हुक्म दिया कि मतीन साहब और उनकी बीवी को इन्हीं बलियों के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। यूं मतीन साहब और शमशाद बेगम को अपनी खुद गर्जी और लालच की सज़ा मिल गई और मोहल्ले की तीनों आवारा बलियां भी अपने अंजाम को पहुंची। और यूं जमील और जमीला को भी अपने सब्र और शक्र का खूबसूरत सला मिला। अल्लाह ने उनके नसीब खोल दिए, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई और वो इज़्ज़त और सुकून के साथ रहने लगे।